Friends, I think it's almost a month back, I had come along with Dr. Somaya and I had the good fortune of listening to Babaji for almost 12 to 15 hours, morning 9 to 12 and again 3 to 6, continuous, uninterrupted. I'm sure you will have the pleasure of listening to him and also clarifying some of your doubts. But what he may not tell and what I think you should know, let me state in 3-4 words. He came from a traditional, orthodox Brahmin family. He did business. It's not that he didn't know what is doing business and gave it up to find in search of truth, let me put it that way. What is the final happiness? How to discover it? He read all the Sanskrit texts that we normally know of and had gone into deep meditation himself. This desire was not only to liberate himself, but was also born by a desire and an understanding that things are not going all right in the country, in the world, in the universe. If they go like that, there will be further deterioration and something needs to be done at the individual level, at the family level, at the society level, as well as the global level. So whatever sutras he has enunciated and followed, they are applicable at all the levels. He taken the essential philosophical tools from various shastras and built his own system which is internally consistent, technically feasible and implementable. He did it himself and he said, I will tell you one sentence he told me, I was in search of a person who said or who can say that I realized God or I saw God. He could not find one. If that is the rarity, why are you in search of him? Do something much is more important, which is valuable. If after spending millions of hours, if you can't find him, and there is something wrong with you all that you know of, which you need to improve, why you don't direct your attention to what is immediately possible? Then the God will automatically come in search of you. See the beauty of the entire statement. So when you see the philosophical mood and the structure that he developed, it's a self-constraining, self-explanatory. Some of us will find it difficult because some of these terms we are conditioned in our own mind with a different terminology. And I'm also extremely happy, I must tell, in his presence. I didn't meet Somji earlier. He was also listening at that time. When he wants to take the class, I thought Babaji also will take some classes. But the way that he explained with his engineering background what should be taught in a student and gone by method, step by step, I must say is a very, very excellent exposition of your philosophy. We are extremely satisfied. We look forward to your interaction. And he said, you experience and tell me. And if these teachers find it useful, he has a big vision. In fact, he doesn't need a certificate from any one of us, let me tell you. Even a great scientist like Abdul Kalam has already given him the certificate. Whatever we can do is a very small thing. But his ambition is, I would say Ichha, as we are discussing just now, desire or proposition is to spread this happiness to millions of people. And the way to do it, he found, is the education system, because that's where most of the people are receptive and it can be cured much more effectively than it is. And he has decided to choose the Somaya Vidya Vihar Parivar as an instrument to spread this message. So to that extent, we are extremely lucky. With these few words, I would like to express on behalf of all the gathering here
our great gratitude to him. He has taken all the trouble to come from the place where he normally lives. It's very, very far away, about 8 hours of drive from here. From there he came all the way, Amarkand, to be a part of us and to bless us. May I request him to kindly address the gathering. I once again thank you, sir, for the consideration and kindness that you have showered our group. Thank you. बाबा, आप सभी लोगों का ऐसा मन है कि भारत में 6 दर्शन पहले से रहे, एक तो इस दर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये किस तरह से उपलब्ध हुआ, और जो अभी तक कहा जा रहा है ये उससे किस प्रकार भिन्न है। बहुत बढ़िया। तो यदि मैं पहले ये आप सब लोगों को धन्यवाद ये बात दूँ, आप हमारे नेकी विचार, नेकी चाहत, नेकी प्रयास का सम्मिलित रूप में आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिस सौभाग्यशाली समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। एक तो पहली बात है, अभी नरसिंहन जी आपने एक अमोघ वाणी से हृदयोद्गार कहा जाए आत्मीय प्रेरणा से जो कुछ भी प्रस्तुत किया उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। 2 बात होती है। तीसरी बात यह है, आप सबका यदि ये सहमति है, ये जो अभी आपने बताया, जो पहले से 6 दर्शन हैं, अभी इस दर्शन की क्या ज़रूरत पड़ गई, ये कैसे अलग है, क्यों अलग है, इस बात पर आप लोगों का जिज्ञासा हो तो इसको हम आप लोगों का पुण्य का प्रभाव मानता हूँ। इसके लिए हमको अनुमति हो। अब इसके बारे में हम आपको हमारे करुण कथा या जो बीती गुजरी गतिविधियाँ आपको अवगत कराना चाहेंगे। ठीक है, इसको करुण कथा भी कहा जा सकता है या इसको बीती हुई गुजरी हुई घटनाक्रम कहा जाए। दो में कोई जो कुछ भी आपको ठीक लगता हो वो आप स्वीकारें। मुख्य बात यह है, मैं एक ऐसा वेद मूर्ति परिवार में शरीर यात्रा शुरू किया। मैं किसी एक वेद मूर्ति परिवार में मैं शरीर यात्रा शुरू किया। उस परिवार में घोर विद्वता, चोटी की विद्वता, चोटी की परिश्रम, चोटी की सेवा, 3 बात उस परिवार में समाहित थी। हम जब समझने योग्य हुए तब तक ये 3 बात देखने को मिला। ठीक है, उसमें से सेवा और श्रम, ये दोनों मुझको बाल्यकाल से स्वीकार हुआ, बिना किसी चर्चा की, बहुत ज़्यादा चर्चा की, जिज्ञासा की, ये दोनों बात हमको स्वीकार हुआ। और जहाँ तक विद्वता की बात है, विद्वता बोलने में, सोचने में, जीने में हम समन्वयता को खोजा। समन्वयता को खोजने से ये पता चला उनमें भी हमारा परिवार में अपना पराया का दीवार रहा आया। वेद मूर्ति परिवार होते हुए अपना पराया का दीवार हम देखा, उसमें हम सहमत नहीं हुए। छुआछूत, अपना छुआछूत के रूप में अपना पराया का दीवार रहा। ठीक है, इसमें हम सहमत नहीं हो पाए। इससे ये एक मूल मुद्दा रही। और उसके बाद दूसरा एक उसके साथ जुड़ी, जब हम 5 वर्ष की अवधि की रहे या 6 वर्ष की रहा होगा, उस समय में हमको बड़े बुजुर्ग लोग दीर्घ दंड नमस्कार करते थे। मैं एक दिन ऐसा हमको विचार आया, हम क्या इनको दे दिया हो, यह हमको प्रणाम क्यों करते हैं। ऐसा हमारे में अंतःकरण में एक उद्गार हो। ये दूसरा उसके साथ जुड़ी। तीसरा बात यह हुई, हमारे परिवार परंपरा में हर पुस्त में, हर पीढ़ी में एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति सन्यासी होते रहे। वो अंत में कई 10-12 लोग ऐसे हुए हैं जो अपने हाथ से अपने ही गांव में कोई एक जगह में गड्ढा कोड़ लिया, उसके अंदर बैठ गए, मिट्टी को कोड़ लिया और मर गए। वहाँ उसको चबूतरा बना के रखा था। हमको हमारे बुजुर्गों ने एक दिन दिखाया उसी अवधि में।
तो हम उस चबूतरे पर एक पर बैठ गए, तो हमको हमारे पूर्वजों ने क्या दिया पूछा तो कुछ नहीं दे पाया। अंतर्गत हमारा विद्वता में तो पराकाष्ठा की थे ही, वो लोगों ने यही बताया, शास्त्र और वेद सच्चाई बता के गए। ठीक है ना, शास्त्र और वेद के बारे में हम शोध करना शुरू करें। ठीक है, शास्त्र और वेद के बारे में शोध करना शुरू किया। परिवार ने, हमारा परिवार संसार को क्या दिया, इस बार एक बात रही, तो ये बात में हमको पता चला हमारा परिवार में कुछ दिया नहीं है और सम्मान प्राप्त किया। यहाँ आ गए हम, शून्य में आ गए। और उसके बाद बचा हमारा परंपरा, अध्यात्मवादी परंपरा संसार को क्या दिया, इसमें हम गए। इसमें जाने से ये पता चला, तो जैसा एक उपनिषद में वाक्य में लिखा है, मंगल कामनाएं बहुत बढ़िया हैं, एक से एक बढ़िया है। 108 उपनिषद है, उसकी सभी मंगल कामनाएं सही है, कोई गलत नहीं। जो उपनिषद में लिखा हुआ अनुसार एक ही वाक्य के रूप में मिलता है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, है ना। तो मंगल कामनाएं इतने विशाल रूप और ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये चुटकी में आ गई। एक ऐसा सबको क्या क्या कल्याण हुआ, उसको हम खोजने लगे तो बताया ये तो कल्याण का स्वरूप है, जीव ब्रह्म के संबंध में है बताया। हमारा वेदांत में यही बताया। क्या बताया? जीवों का ब्रह्म में विलय होना कल्याण, यही मुक्ति, अद्वैत मोक्ष का यही मतलब लिखा है वेदांत शास्त्रों में। ठीक है, तो सबका सुखी होना, सबका कल्याण होना, इसमें क्या चीज हुई? विलय होने से क्या हुआ? सब क्या रहा? क्या चीज सबके रूप में पहचाना जाए? अब उसके लिए तर्क दिया है, एक में अनंत विलय रहता है। जब इच्छा हुआ ब्रह्म का, तब वह अनंत में प्रकट होता है। ये जो प्रकट होना, ये कहीं किस शोक के लिए प्रकट होता है। जब कल्याण, जब एक में विलय होना ही है, विलय रहता ही है, एक में अनंत होने की क्या शोक है? ये एक प्रश्न हुए, ये हमारे परिवार के लिए भारी पड़ी। उच्च कोटि के विद्वान, उनके लिए ये प्रश्न काफ़ी भारी पड़ी है। इसको कहने लगे, छोटे मुंह में तुम बड़े बात करते हो। ठीक है, उसके बाद, इसके बाद और भी शोध में और एक बात निकल गए। एक जगह में लिखा है, पहले सर्वप्रथम लिखा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य ही है, अनंत और ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। अनंत स्वरूप में ये पूरा जीव जगत है। ठीक है ना। तो जो सत्य जो है, सत्य रूप में ब्रह्म ही है, ऐसा बताए। उसके बाद ये बताए, जो जीव और जगत ब्रह्म से पैदा हुआ बताए। जीव भी ब्रह्म से पैदा हुआ, जगत भी पैदा हुआ, ऐसा लिखा हुआ। जगत पैदा होने की विधि बताया है, जीव पैदा होने की विधि बताया है। इन दोनों को बता करके और अंत में लिखा है ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। उसमें मेरा संस्कार रहा या बुजुर्गों का पुण्य रहा, आशीर्वाद रहा, ईश्वरीय कृपा रहा, हम नहीं जानता हूँ। मुझको ऐसा लगा, सत्य से मिथ्या कैसा पैदा हुआ। यहाँ से हमारा सिर का दर्द शुरू हुआ। पहले से छोटे मुंह में बड़े बात, उसके बाद यह सिर का दर्द शुरू हो गया। ये इस ढंग से हम दर्द भरे स्थिति में आए। हमारा जो पीड़ा का आधार है, ये दो मुद्दा हुए। संसार में हम अभाव से कटवाया नहीं हो, कुंठा से हम पीड़ित नहीं हुआ। मैं एक व्यक्ति शरीर यात्रा में ही हूँ, मुझको अभी तक अभाव छूया नहीं, कुंठा से पीड़ित हुआ नहीं। मैं ये बैठा हूँ जीवित। ठीक है, मेरे ये जो अवस्था बताया, दो मुद्दे पर आ गया, ये 20 वर्ष तक अवधि में आ गए हैं। इस दर्द से भर गए। क्या किया जाए भाई, क्या किया जाए? होता रहा, बहुत सारे ज्ञानी कहलाते रहे, उनके साथ
केवल सही ढंग का सही गलत तर्क होती रहे, वो कोई चीज़ मिला नहीं। अंत में हमारे 24वें वर्ष में या 23वें वर्ष में रमण महर्षि जी के पास मैं पहुंचा। रमण महर्षि जी का एक बहुत ही चाहत का एक शिष्य थे, उसका नाम था काव्य कंठ गणपति शास्त्री। ये आप लोगों में कोई सुना भी होगा, नहीं भी सुना होगा। वो हमारे परिवार के बहुत निकटवर्ती बंधुओं में से रहे। वो हमको लेके गए, जा कर के उनके पास बैठे, हमारे जो पीड़ा है उसको बताए। बताने पर उन्होंने हमको यही बताया, तुमको इसका उत्तर समाधि में मिलेगा। ठीक है, समाधि में मिलेगा। ऐसा बोलने पर उस समय में हमारा पास उसके पहले जैसा तर्क को तर्क करता रहा, कुतर्क नहीं किया हूँ ऐसा नहीं कहता हूँ, कभी कभी किया भी होगा, किंतु तर्क ज़्यादा किया हूँ। और हमारा तर्क से हम यह उनको पूछ सकते थे कि ये आपको समाधि हुआ कि नहीं हुआ, आपको ये ज्ञान है कि नहीं है, ये पूछ सकते थे। उस दिन हमारे पास ये अधिकार था। हमको समाधि होगा कैसा हम विश्वास करें, अपने में कैसा विश्वास करें। यदि ये कह दिया समाधि हुआ है, हमको ज्ञान नहीं हुआ, हमको ज्ञान होगा ऐसा मैं उम्मीद कैसा करूं। इन दो कारणों से हम उनसे ये तर्क नहीं किया। इसको हम अपने में समा के रखा, संभाल के रखा। वो हमारे लिए उपकार हो गया आज के स्थिति में। ठीक है ना। तो उसके बाद वो समय पा करके हम हमारे उस समय में जो थी सबके शास्त्रों के अनुसार, तो उस समय में पत्नी का अनुमति चाहिए यदि विवाह हुआ है, माता का अनुमति चाहिए, गुरु का अनुमति चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। उसको हम पढ़ा था। पहले हमारे माँ से पूछा, हमारे माँ भूरी भूरी आश्रम दी, आशीर्वाद दी, तो तुम्हारा निर्णय तुम्हारे लिए सफलता का रास्ता है, ये कहती। उसके बाद हमारा पिता से पूछा, वो बता दिया जब तक हम लोग जीते हैं हमारा सेवा तुम्हारा तप है, तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारा विवेक है, तुम्हारा सब कुछ उपलब्धि का रास्ता यही है, ये उन्होंने बोल दिया। ठीक है। उसके बाद हमारा गुरुजी से पूछे, जो उस समय में हम जिसके साथ हम आस्था जोड़े थे वो श्रृंगेरी जगत गुरु कहलाते थे, चंद्रशेखर भारती जी उनका नाम। उनके श्री चरणों में हमारा आस्था बंधी थी। तो इस विधि से हम गुरुजी कहे तुम तत्काल अपना निर्णय के अनुसार तुम व्रती हो जाओ, तुम माने नर्मदा किनारे जाके भजन करो, ये बताया। ठीक है। संयोग जो हमारे 1 वर्ष नहीं गुजरा, हम 1 वर्ष 2 महीने की बात चलूँगा, ऐसा उस समय में ऐसा था। तो इसके पहले 1 वर्ष के पहले हमारा माँ का निधन हो गया। उसके 1 महीने के बाद हमारा पिताजी का शरीर शांत हो गया। उसके अनुसार हम वहाँ के एक मरणोत्तर कर्म के अनुसार 1 वर्ष तक कुछ करने के लिए कहते हैं। वो उस मर्यादा को हम निभा करके सन 50 जनवरी 1 तारीख को हम अमरकंटक पहुँचे। ठीक है। सन 1950 और जनवरी 1 तारीख की प्रातः हम अमरकंटक में रहे। उन दिनों में इतना ज़्यादा तुषारपात होती थी, हम जब बाहर निकले तो जैसा कि धरती पर चांदी बिछा है, सफ़ेद दिखती रहे। हम लोग करीब मैं मेरे श्रीमती जी दोनों 1 आधा घंटा वो तुषार पर चलते हुए सुख का अनुभव किया। उसके बाद नर्मदा जी का दर्शन किया। उसके बाद वहाँ का स्थानीय महापुरुषों का दर्शन किया। उसके बाद हम अपना साधना की स्थली निर्णय किया, साधना करना शुरू किया। साधना करने की शुरू करने में एक प्रेरणा वहाँ के स्थानीय लोगों से मिली। वहाँ के जो 1 महीना 2 महीना हम जो जंगल घूमा, उन दिनों में हम देखा वहाँ का बुजुर्गों को, तो सवेरे उठ कर के चाय पानी पीना,
और जैसे ये होता है, क्या कहते हैं वो, चिट खेलते हैं, स्पीड क्या तो नाम देते हैं, वो चिट खेलते हुए देखता रहा। वो चौपट नाम की कोई चीज़ होती थी, उसको खेलते हुए देखता रहा। और अंततोगत्वा बीड़ी पीते हुए देखता रहा, सिगरेट पीते हुए देखा है, इतना सब हम देखा। तो हम इनके पास तो बैठेंगे तो हमको भी कहेंगे यही करो। उसके कारण से हम सवेरे 6 बजे से शाम को 6 बजे तक सर्वप्रथम साधना का 12 घंटे की एक रेंज बनाया। उस ढंग से हम प्रयत्न किए। प्रयत्न करने से हम सफल हो गए, उसमें बैठने में सफल हुए। मन में हम अभी सफल नहीं। मन में सफल होना तीसरे वर्ष से शुरू हुए। शरीर को बैठे रहने के लिए अभ्यास में हम सफल हो गए, पहले दिन से ही सफल हो गए। और 2 वर्ष तक हमारा मन में कोई हमारा सफलता नहीं रहा। मन की जो है ना दौड़ यथावत रहा। तो 2 वर्ष के बाद मन धीरे धीरे संयत होना शुरू किया। संयत होकर के ये चल करके करीब 10 वर्ष 12 वर्ष के बाद या 15 वर्ष के बाद मन पूरा का पूरा ध्यानस्थ होना में आ गए। उसके बाद समाधि की स्थिति आई। समाधि की स्थिति में हम इस बात को देखता रहा कि हमारा आशा विचार इच्छाएं सब बंद हो गए, चुप हो गए हैं। इसका दृष्टा मैं रहा। मेरा आशा विचार इच्छा ये तीनों चुप हो गए हैं। शरीर और समय का कोई ज्ञान नहीं। उस समय में शरीर और समय का कोई ज्ञान नहीं रहता। ये जिसका अवश्य में दिखता है कि हमारा आशा विचार इच्छाएं बंद हो गए, चुप बैठे हैं, ऐसा लगता है। इसके बाद दूसरा बात यही रहा कि जैसा एक बहुत बड़ी भारी गहरी जगह पानी हो, उसमें डूब करके आँखें खोलने से खूब सूर्योदय हो गया हो, और आँखें खोलने पर जैसा लगता है वैसा हमको लगता रहा। मैंने आशा विचार चुप हो गए, गहरी पानी में डूब करके आँखें खोलने से जैसा लगता है वैसा मुझको लगता रहा। अब उस स्थिति में हम इस बात की मैंने निरंतर उसको 12 घंटा तक लगता रहा। 12 घंटा से 14 घंटा 18 घंटे तक भी कोई दिन रहे हैं। वो हमको और कोई ज्ञान हुआ नहीं। ये स्थिति को हम करीब 20वें वर्ष तक पहुँचाए। ये स्थिति को 20 वर्ष की साधना तब तक व्यतीत हो गई। 20 वर्ष होने के बाद जब कोई ज्ञान नहीं हुआ, अब हम जब निकला, हमारे साथ में जो छोटा छोटा उद्योग रखने वाले बहुत सारे लोग थे, वो लोग हमसे पूछे कि तुम जिस बात के लिए जा रहे हो उसमें तुम सफल होने का आशा है? मैंने बोला नहीं। फिर कई के लिए जा रहे हो? प्राण देने के लिए जा रहे हैं। क्यों तुम जा रहे हो? तुम कोई प्राण दे नहीं सकते, इसलिए मैं जा रहा हूं। तुम जितने भी हमारा मित्र हैं, तुम लोग कोई भी ये प्राण दे नहीं सकते। तुम्हारे पास ऐसा तर्कसंगत प्राण देने की विधि नहीं है। तुम्हारे पास क्या है? पूछे थे। हमने बताया हम जितने भी हमारा अध्यात्मवाद देखा है, पुराण पंचांग देखा है, उसमें हमारा स्वीकृति है। हम कई बार शरीर यात्रा कर चुका हूँ। एक शरीर यात्रा को इसमें वैसे ही पत्थर जैसा फेंक दिया, क्या तकलीफ? पुनः तो शरीर यात्रा होती रहेगी। ऐसा मैं उनको उत्तर दिया। इसमें काफ़ी लोगों को एक रोमांचकता भी हुई, कुछ अफसोस भी हुई, सारे बात हुई। वहाँ से हम चले आता हूँ। ये साधना हुई। साधना से मैंने हम संयम समाधि को देखा। समाधि में कोई ज्ञान नहीं हुआ। तब हम सोचने लगे, हमारा समाधि का तो बात हो गई, अब हम सब जाऊंगा, हमारा मित्र लोग पूछेंगे अभी तक क्या भाड़ झोंका। समाधि का कोई गवाही होता नहीं। समाधि होने का कोई गवाही नहीं बनता। इस संकट से उभरने के लिए हम समाधि के बाद संयम होने की बात शास्त्रों में लिखा। उसमें लिखा हुआ साधारण ध्यान समाधि त्रय में एकत्रत्वात् संयम, पतंजलि योग सूत्र में लिखा हुआ। और मैंने कहा कि ठीक है,
इसको करेंगे। अब विभूतिपाद नाम की लिखा हुआ संयम से क्या होता है वो सब पढ़ा तो लगा ये सब जो है ना अप्राप्ति को प्राप्त करने की बात हुई, इसमें कोई ज्ञान प्राप्ति की कोई चीज़ नहीं हुई। ये कैसे इसको माना जाए कि इसको ज्ञान, हमारा ज्ञान, हम जिस बात की अपेक्षा की थी वो ज्ञान का उत्तर उस संयमों से नहीं रहा। जब हमको ये पता चला इस संयम से तो होता नहीं, फिर क्या किया जाए, उसमें ये कहा, सोचा अपने सद्विवेक से कि संयम करना ये इन तीनों ही बात है, धारणा धान समाधि, इन तीनों एकत्रित होना है। तो वो कहते हैं धारणा ध्यान समाधि त्रय में एकत्रत्वात् संयम। मैं समाधि ध्यान धारणा त्रय में एकत्रत्वात् संयम, उसको उल्टा किया, उल्टा विधि से हम संयम किया। संयम होने की बात होगा तो तीनों विधि से होगी, चार विधि बनता है उसमें, चारों विधि से संयम होगी। ऐसा सोच करके हम उल्टा करके संयम किया। संयम किया तो संयोग से हमको पूरा प्रकृति अध्ययन में आए। एक परमाणु अंश से लेकर सकल ये क्या कहते हैं योगिक क्रिया से के वैभव और प्राणकोशा में प्राण सूत्र, ठीक है ना, और रचना विधियाँ, ये सब चीज़ें हमको देखने को मिली। एक ये क्या कहता है वो जड़ संसार में, जड़ प्रकृति में, जड़ प्रकृति ये दो भाग में है, ठीक है ना, भौतिक रासायनिक दो भाग में जड़ प्रकृति है। इसको बहुत अच्छी ढंग से हम देखा। उसके बाद और जीवन वस्तु को देखा, गठन पूर्ण परमाणु के रूप में हम जीवन वस्तु को देखा। अब पहले हमको हमारे बुजुर्गों ने जीव का नाम दे चुके थे, वो हम जीवन नाम दिया है। जीवन एक परमाणु है, वो परमाणु गठन पूर्ण परमाणु है। उसी में जो गठन पूर्ण परमाणु होने का फलस्वरूप में उनके जो है ना अणुबंधन भार बंधन से मुक्ति है। आशा बंधन से शुरुआत, आशा बंधन को जीवावस्था में जीवन व्यक्त कर चुका। आशा बंधन को जीवावस्था में जीवों का शरीर द्वारा प्रमाणित कर चुका। वो 4 विषयों में सीमित हो गए। जीव संसार 4 विषयों में सीमित, ठीक। अब मनुष्य का शरीर रचना शुरू हो गई उन्हीं प्राण कोशाओं से। जीव शरीर का भी शरीर और प्राण कोशाओं से तैयार हुआ है। मनुष्य शरीर का भी शरीर वो प्राण कोशाओं से तैयार हुआ है। ये बात जरूरी है, जो वनस्पति संसार में जो प्राण कोशाएँ जितना बढ़िया हैं उससे अच्छा जीव शरीर रचना में है, उससे अच्छा मानव शरीर रचना में है, ठीक हो गया। अब उसके बाद मनुष्य शरीर आया तो विशेषता ये आई, सातों धातुओं के साथ शरीर रचना पूर्ण हुआ। जीव शरीर भी 7 धातुओं से होता है, किंतु मनुष्य शरीर में विशेषता यह है मेधस्थ संरचना परिपूर्ण हो चुकी। परिपूर्ण होने का गवाही हर मनुष्य में गवाहित है, वो है कल्पनाशीलता कर्म, जीवन का कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता प्रकट हो गई। जीवन सहज कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता प्रकट हो गई। फलस्वरूप क्या हुआ, झाड़ में बैठा हुआ आदमी धरती में आया, धरती में उतरा हुआ आदमी झोपड़ी बनाया, झोपड़ी बनाया हुआ आदमी गांव बनाया, गांव बनाया हुआ आदमी शहर बना दिया, सड़क बना दिया। आज तक हम वहाँ उस जगह में हैं। अब इसके समर्थन में मनुष्य का एक परिभाषा आ गई। वह परिभाषा के अनुसार मनाकार पूरा हो गए, मनाकार साकार होना पूरा हो गए। मनाकार साकार करना, मनस्वस्थता को प्रमाणित करना मानव परंपरा है, मानव चेतना का परंपरा है। मनस्वस्थता भी बखेड़ा है, माने मनस्वस्थता प्रमाणित हुआ नहीं है परंपरा में, और मनाकार साकार हो गया। मनाकार साकार होने से वस्तुओं के साथ हुई है, माने जड़ वस्तुओं के साथ मनाकार साकार होना बना। रेल बनाया, इंजन बनाया, मोटर बनाया, ये बनाया, 3 बनाया, ये सब जड़ वस्तुओं से ही बनी हुई, ठीक है। तो किंतु मनस्वस्थता स्वयं से होना है, वो चीज़ हुआ नहीं। हम अभी मनाकार साकार होने की पक्ष में ही ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा,
ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को छीना झपटी करने के लिए संविधान बना के रखे हैं। क्या करने के लिए? वस्तुओं को छीना झपटी या छीना झपटी से मुक्ति दिलाने के लिए हम संविधान बना के रखें। ये समझ में आता है कि नहीं आता है? सबको आएगा ना? ये कोई तकलीफ है? इस प्रकार से हम फंस गए हैं। मनुष्य अपने परिभाषा से आधा भाग तक तो पहुंचा है और आधा भाग में बिल्कुल फेल्यूर है। एकदम कहीं भी नहीं है समाधान। ना स्वयं में है, ना परिवार में है, ना समाज में है, ना राष्ट्र में है, ना अंतर्राष्ट्र में। इन चारों जगह को हम छू छू के देख चुका है। कहीं भी समाधान नाम की ट्रेस नहीं। अब विश्वविद्यालय में बनाया गया, न जाने क्या क्या विद्यालय नाम दिया है। आप लोगों को ज़्यादा ज्ञान है इन पक्ष में, तो ये सब तो हम कर लिए, किंतु समाधान नाम की चीज़ नहीं। ठीक है, अब ऐसे स्थिति में क्या किया जाए, किया जाए? तो पहले हम राजनेताओं को पकड़ा, धर्म नेताओं को पकड़ा, उसके बाद विद्वानों को पकड़ा। विद्वानों को सर्वप्रथम विद्वानों के पास गए तो ये हुआ कि हम नौकरी करते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद धीरे धीरे ये पता चला कि विज्ञान बैकग्राउंड वाले लोगों को ये धीरे धीरे रंगती है। उसके बाद संयोग से दिल्ली की IIT से हम संबद्ध हुए, वहाँ कुछ आशा जगी। उसके बाद जो है ना प्रयोग शुरू हुई उसमें कानपुर में, उससे और कुछ आशा जगी। उसके बाद कानपुर रायपुर में शुरुआत हुई प्रयोग, उससे और आशा जगी। उसके बाद हैदराबाद में प्रयोग शुरू हुई और आशा जगी। इस ढंग से 4-6 जगह में मंसूरी में ये सब प्रयोगों से कुछ आशाएं हो सकता है मानव समझ पाएगा। ऐसा मैं आशावादी के आधार पर प्रयत्न कर रहा हूँ। ये आशा रख रहा हूँ आज नहीं कल मानव समझेगा। क्यों समझेगा? एक भाग बखेड़ा है, समाधान के अभाव है। भौतिकवादी विधि से समाधान मिलता नहीं, ईश्वरवादी विधि से मिलता नहीं। क्या मिलता नहीं है? ईश्वरवादी विधि से ये लोकव्यापीकरण होने वाला नहीं। हम मान करके हम समाधि संयम साधना किए, ये बात सही है। कोई विधि नहीं थी, इस विधि से यही होगा। मुझको समाधि हुई है, संयम किया हूँ। मुझसे आप पूछा जाए हमको समाधि होगा कि नहीं, हम बोल नहीं सकते हैं आपको समाधि होगा। उसमें ऐसा कोई लगी जुड़ी हुई कड़िए नहीं है, वो मानना ही पड़ता है हम करोगे। ठीक हो गए, ये कष्ट आए। इस आधार पर वो साधना विधि से मनुष्य को प्रेरित करने के बारे में हमको रुकना पड़ा। अब उसके विकल्प में आया समझदारी विधि से साधना से जो प्राप्ति है वो सबको मिल सकता है। ये निकल गए। क्या सुना नरसिंहन? इस भाग को थोड़ा सा इनको बोलो कि आप करोगे। ठीक है, बताओ इसको ठीक से बताओ। ये भाग अपील होना चाहिए। ये मुख्य बात, बीज मंत्र यही है। साधना से जो प्राप्ति हुई वो सबको मिलेगा। साधना सब नहीं कर सकते, ये आज हमारा निष्कर्ष ये है। हाँ। साधना का फल साधना किए हुए व्यक्ति के पास है, उसका लोकव्यापीकरण या सबके लिए वो उपलब्ध हो जाए, ऐसा नहीं हो पाया। अब बाबा जी कह रहे हैं कि समझदारी विधि से जो साधना से प्राप्त होता है वो फल सबके लिए लोकव्यापीकरण हो सकता है शिक्षा के माध्यम से। ठीक है, इसमें सहमत आप लोग? ठीक है ना? इसका जो बीज कहाँ है? हर व्यक्ति समझदार होना चाहते हैं। स्वयं में आपके पास कोई चीज़ है, इसका आधार मैं ऐसा मानता हूँ जैसा रेडियो होता है, उसमें पहले से इलेक्ट्रिसिटी रहती है। शब्द जो है ना, शब्द तरंग इलेक्ट्रिसिटी के साथ आकर के पुनः यहाँ प्रोड्यूस होता है। इसको आप लोग जान लिए हैं, आप लोगों में कई लोग जानते होंगे। वही प्रकार से हमारे पास ज्ञान की अपेक्षा रहती है, इसीलिए ज्ञान हमारे में प्रकट हो सकता है। ये हमने मानव जाति को माना। उस आधार पर मानव को कहा है ज्ञानावस्था की इकाई।
ये ठीक नामकरण रखा कि नहीं? इसके पहले हमारे धर्मगद्दियों ने ये नाम रखा है स्वार्थी, अज्ञानी, पापी। और राजगद्दी ने ये माना है देश के हर व्यक्ति गलती कर सकता है, अपराध कर सकता है, पड़ोसी देश युद्ध कर सकता है। इसीलिए हर राज्य संविधान में ये लिखा है गलती को गलती से रोकना है, अपराध को अपराध से रोकना है और युद्ध को युद्ध से रोकना है। ये संविधान है। जितने इस धरती पर संविधान है, राज्य संविधान, सब संविधानों का हसरत ये नहीं। ये आप सहमत हैं? गलत है। इसमें आदमी कहाँ है? आदमी का स्वरूप कहाँ पता चला? आदमी का संरक्षण की बात कहाँ पता चला? इन दोनों विधि से कहीं नहीं है ना। उसके बदले में हम क्या कहा? मानव ज्ञानावस्था की इकाई है। ज्ञान का ढांचा खाचा हमको मिल गए। क्या मिल गए? अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान। इन तीनों भाग एकत्रित होने से हम ज्ञान संपन्न हुए। इसके आधार पर विवेक संपन्न होने की व्यवस्था आती है। विवेक में तीन रूट होती है। वो है आत्मा का, जीवन का अमृत, व्यवहार का नियम और शरीर का नश्वरत। इन तीनों बात एकत्रित होने से विवेक हुआ। शरीर का नश्वरत इसीलिए है तो प्राणकोशाओं से रचित रचनाएं हैं, एक दिन विरचित होते हैं। जैसा हर पौधा एक वर्षायु को होती है, शतायु की होती है, किंतु विरचित होता है। वैसे ही मानव शरीर भी प्राणकोशाओं से रचित हुए है। चाहे 10 वर्ष रहे, 1 वर्ष रहे, 100 वर्ष रहे, 200 वर्ष रहे, किंतु विरचना निश्चित है। ये बात को हमने देखा। इसके आधार पर शरीर का नश्वरत्व को बताया, जीवन में अमरत्व को बताया, व्यवहार के नियम बताया। मानव परंपरा बनती है शरीर और जीवन के साथ। जीवन हो, शरीर ना हो, मानव परंपरा नहीं है। ठीक है? और शरीर हो, जीवन ना हो, तभी भी मानव परंपरा नहीं। जैसा मनुष्य रहता है, एक दिन जैसा कि मेरे ही माता पिता का शरीर शांत हुआ, वह शरीर से जीवन जब अलग हो गए, उसके बाद मानव नहीं कहलाया, मुर्दा कहलाया। इसको हमने देखा है, हमारे माता पिता के सानिध्य में देखा है। अच्छा, जब तक उनके साथ जीवन रहा तब तक माता ही कहते रहे, पिता ही कहते रहे। ठीक है? ऐसा बात को हम भोग के आए। ठीक है? ये सब बात हमारे साथ गुजरी हुई बातें हैं। वो तो आपके साथ भी प्रकारांतर से ये अपना कल्पना में आता ही होगा, ऐसा मेरा विश्वास। ये हुआ पहले की एक करुण कथा कहो, घटनाक्रम कहो, एक बुजुर्गों का आशीर्वाद कहो, मानव का पुण्य कहो। मैं अपने भाषा में कह रहा हूँ ये मानव का पुण्य से हम सफल हुआ। मैं क्या कह रहा हूँ? मेरा सफलता मानव का पुण्य से हुआ। ये तो मानव का उपयोगी होना काय को था। अरे मानव का पुण्य नहीं होता, ये मानव का उपयोग अर्थ क्यों आता? इसके आधार पर मैं ऐसा मान करके अर्पित कर रहा हूँ। ठीक है? जब हम सब पा गए, पूरा अध्ययन हुआ, हम संतुष्ट हुए, तो पता चला तो जो किसी ब्रह्म से कोई चीज़ पैदा नहीं हुआ। ब्रह्म में पूरा जड़ चैतन्य प्रकृति काम कर रहा है तो उसका स्थिति ह्रास और विकास के रूप में स्पष्ट है। ह्रास होने से क्या होता है? विकास होने से क्या होता है? विकास होने से 4 अवस्थाएं एक धरती पर होते हैं। ह्रास होने से क्या होता है? ये जो भौतिक वस्तुएं हैं, रासायनिक वस्तुओं में यौगिक विधि से होने वाले कार्यक्रम है, वो बंद हो जाता है। क्या होता है? जो यौगिक क्रियापूर्वक जो रासायनिक संसार वैभवित होना है, प्राणकोशा के रूप में वनस्पति संसार, जीव संसार, मानव संसार का शरीर रचनाएं होना है, वस्तु रचनाएं होना है, वो खत्म हो जाता। जैसा अभी चंद्रमा पर आदमी गया है, वहाँ कोई चीज़ नहीं है, सूर्य में नहीं है और ग्रहों में नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है ना? तो ये धरती पर ही ये 4 अवस्थाएं हैं और इसको बनाए रखने का तमीज मानव में आवश्यक है। वो अब तमीज से हम दूर रहे, फलस्वरूप हम बहुत सारा क्षतिग्रस्त कर दिया धरती को। यदि ये आता है क्या चीज़?
मानव चेतना के रूप में जीना यदि लोकव्यापीकरण होता है, अभी भी यदि कह रहा हूँ, हमको ऐसा विश्वास नहीं कि आज एक क्षण में सब हो जाए, किंतु यदि हो जाती है तो तब यह अपेक्षा किया जा सकता है धरती के साथ मानव करने वाले अपराध परंपरा को विथड्रा कर सकता है, वापस कर सकता है। तब धरती अपने शक्तियों से कितना संभल सकता है उसका आकलित किया जा सकता है। ऐसा मैं ये प्रस्ताव रख रहा हूँ, ठीक रहेगा। ये कुल मिलाकर के करुण कथा का विधि हुई। अब भारत में जो महानगरियाँ हैं, मेरे आकलन में बम्बई से अधिक अपराधवादी, अपराध के विरोध करने वाले मानसिकतावादी शहर कोई नहीं है। अपराध को विरोध करने में भी वही है ज़्यादा से ज़्यादा ताकत। अपराध करने में उससे कुछ ज़्यादा कभी कम वो अपराध करने वाले प्रवृत्ति भी। ऐसा ये जुगल जोड़ी में मुंबई चल रहा है। महान अपराधी वो शहर वो है, उसके बाद कलकत्ता है, उसके बाद दिल्ली है मेरे नज़रों में। आप लोगों का नज़र में कैसा है हम नहीं जानते। सब जगह में अपराध है, अपराध का विरोध भी है ना। अब इसके चल करके अभी विरोध का दमन, विरोध का विजय, 3 भाग होता है, 3 विधि है विरोध के साथ पेश होना। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं विरोध का विजय की बात है, ना कि ये विरोध का ये दमन करने जाता है, ना विरोध का विरोध करने जाता है, विरोध का विजय करता है। क्या विजय? जो अपराधियों को क्या समझा, उनको जागृतिपूर्वक जीने के लिए स्रोत बन जाता है। कौन बनता है? जागृत आदमी। जागृत आदमी अपराधी आदमी का अपराधों से मुक्त होने के लिए जो ज्ञानार्जन कराना है उसके लिए स्रोत बनता है। उसके आधार पर ये शिक्षा विद्यालयों में यह ज़्यादा पनप सकता है। आज जो है ना, पहले शुरुआत में युवा पीढ़ी में ज़्यादा पनप सकता है, उसके बाद मैंने ये तो क्या कहते हैं प्रौढ़ पीढ़ी में पनप सकता है, उसके बाद वृद्ध पीढ़ी में जन्म सकता है। ऐसा मैं सोच रहा हूँ। अभी वृद्ध पीढ़ी में इसके सहमति हो सकते हैं, ये अपने जीने की जो तरीका है उसको बदल नहीं पाता है। अभी प्रौढ़ पीढ़ी, जैसा आप लोग ज़्यादा प्रौढ़ पीढ़ियों में गणनीय हैं, तो आप भी अपने में इसको समझने में तो आपका आएगा, इसमें दो राय नहीं। आप लोगों में जितना भी परसों से आज तक 3 दिन की प्रयास में जैसा आप लोगों का प्रस्तुति है, अब बोलने की तरीका है, पूछने की तरीका है, जो परिणतियाँ हुई है, उसको देखने पर मुझको आशा जगता है आप लोग समझ सकते हैं। समझने के बाद इसके अनुसार जीने के लिए जहाँ बात आता है, आप लोगों के साथ भी एक बहुत बड़ी भारी कठिनाई तो आएगी। इसके अनुसार जीने में आता है समाधान समृद्धि पूर्वक जीना, ठीक है, और उस स्वावलंबी रहना। उसकी 6 चौखट बनता है। मनुष्य का क्वालिफिकेशन है समझने के बाद स्वयं में विश्वास होता है, श्रेष्ठता का सम्मान होता है, अपने प्रतिभा और व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का मतलब होता है आहार, विहार, व्यवहार, इन तीनों मिलकर के व्यक्तित्व। तो प्रतिभा माने ज्ञान, ज्ञान के अनुरूप जो व्यक्तित्व है वो संगीत हो जाना। उसके बाद जो है ना, व्यवहार में सामाजिक होना, अखंड समाज, अखंड राष्ट्र, सूत्र व्याख्या के रूप में जी पाना। क्या बात? व्यवहार में सामाजिक होने का मतलब क्या है? अखंड राष्ट्र, अखंड समाज, सूत्र व्याख्या के रूप में जीना, ठीक है ना। और उसके बाद व्यवसाय में स्वावलंबी, उत्पादन कार्य में स्वावलंबी रहना। ऐसा 6 स्वरूप मिलती है। इसको पूरा समझने के बाद हर व्यक्ति में ये प्रभावित होता है। यदि ये आती है तब जीने की विधि जो बनता है वो स्वावलंबन ही बनता है, स्वतंत्रता ही बनता है, ठीक है ना। स्वानुशासन ही बनता है। स्वानुशासन का मतलब है स्वयं स्फूर्त। स्वयं स्फूर्त विधि से हम व्यवस्था में जीते हैं। परिवार में व्यवस्था को पहले प्रकट करते हैं, अखंड समाज व्यवस्था में प्रकट होते हैं, अखंड राष्ट्र व्यवस्था में प्रकट होते हैं, और उसके बाद जो है ना सार्वभौम व्यवस्था में प्रकट हो जाता है। इतने ही कुल मिलाकर सार्वभौम व्यवस्था उसका नाम है। चारों अवस्थाओं के संतुलन पूर्वक जीना सार्वभौम व्यवस्था का मतलब।
चारों अवस्थाएं संतुलित रहने से मानव सुरक्षित रहेगा। ये तो बाकी अवस्थाएं असंतुलित होते हैं, मानव कहाँ से संतुलित रहेगा। अभी जैसा धरती बीमार हो गया कह रहे हैं, धरती में कितना डिग्री टेम्परेचर आ गया बताते हैं, और यदि इतने में इतना उत्पात हो रहा है, आगे चल करके कितना होगा सोच लीजिए। ठीक है, तो मनुष्य कहाँ, वो सुरक्षित कहाँ। मनुष्य अपने को 30 मार खान माना ही है। ये सब धरती का पेट फाड़ने में, धरती को बीमार करने में जो काम किया, इसको 30 मार खानी विज्ञान मान करके हम चले ही हैं, वरदान मान के ही चले हैं, नहीं चले हैं। सबका आजीविका का आधार है ऐसा मान के ही चले हैं, नहीं चले हैं। ठीक बात है ना। किंतु किए क्या है, धरती के साथ अपराध हो गए। मानव के साथ अपराध होना बहुत बड़ी भारी क्षति नहीं है, किंतु धरती के साथ, ज़्यादा वनस्पति संसार के साथ, खनिज के साथ अपराध जो होता है वो ज़्यादा क्षतिग्रस्त है। सबसे क्षतिग्रस्त हुआ खनिज के साथ अपराध। खनिज के साथ अपराध में भी 3 बात आती है। उसमें एक बात को याद दिलाना चाहेंगे, शायद आप लोग सब जो है ना विज्ञान की पृष्ठभूमि से ही आए होंगे सर्वाधिक लोग, तो उसमें जो है ना इस पढ़ाते हैं एक भाग, काले वस्तुएं ऊष्मा को पीता, सफ़ेद वस्तुएं ऊष्मा को झटकारता है, बाहर फेंक देता है। ऐसा पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते, उस पर याद दे रहे, पढ़ाते। अभी यह धरती अपने पेट में जो कोयला रखा था, काला वस्तु है कि सफ़ेद वस्तु? आपके आंसर काला वस्तु। उसको निकाल दिया कि नहीं? निकालने के बाद जो पी कर के हजम करना है ऊष्मा को, वो कम हो गया कि नहीं? वो उतना ही ऊष्मा धरती पर समा गया, वो उतना ही बुखारग्रस्त हुए। ठीक है, इस ढंग से क्या मानिए, खनिज कोयला, खनिज तेल, रेडिएशन मेटल, विकिरणीय धातुओं को जो अपहरण करना धरती के साथ अपराध हुआ, उसको उपयोग करना ये जो है ना प्रदूषण हो गए। अपना पराया का दीवार कहाँ है? सबसे प्रबल दवाई है सीमा सुरक्षा। सीमा सुरक्षा के लिए ही धरती को ज़्यादा से ज़्यादा हिंसा माने तंग करने की आवश्यकता आई। उसको अपना उद्धार माना। क्या बात? उस समय में आज जो महाकाल हो गया, मानव जाति उपर उठो, ऐसा यहाँ आ रहा है। मानव जाति उठ जाएगा, मानव परंपरा कहाँ रहेगा? सोचने की मुद्दा है। वो उसकी दवाई है ये। उस प्रकार की मानसिकता का ये पूरा का पूरा एक बोध कराता है। इसमें सर्वशुभ की संभावना आ जाती है ना, स्वाभाविक है ना ये। धरती को साथ यदि जागती हम बंद करते हैं, सर्वशुभ के अलावा आलम्बन कहाँ है? सर्वशुभ के बारे में सोचने के अलावा दूसरा रास्ता कहाँ है? उसके अनुसार हम संविधान को पहचानना के अलावा क्या रास्ता है? और जीने की तरीके को खोजने के अलावा क्या रास्ता है? जीने के अलावा कौन सा सुखद रास्ता रहेगी? इन सब बातों पर आप लोग जांच सकते हैं। और उसमें हम सबसे जो कारगर उपाय शिक्षा विधि ही है, ये हम समझा। उसके बारे में हमारा सोच विचार अंतिम निष्कर्ष यही है। तो हम जो चेतना विकास, मानव चेतना, अभी तक जीव चेतना में जिया है, अब मानव चेतना पूर्वक जो मूल्य शिक्षाओं को पहचानते हुए इसके रोशनी में तकनीकी शिक्षा समेत एक सिलेबस बनाने की ज़रूरत। उसमें उस मुद्दे पर हमारे नरसिम्हन जी के सामने सुमैया जी से थोड़ा सा रिक्वेस्ट किए थे, तो यदि इसका संयुक्त रूप में एक सिलेबस बना सकते हैं आपका कैंपस, ये एक बहुत बड़ी भारी ऐतिहासिक स्थापना होगी। आपका संस्था इसके योग्य है। इसमें एक प्रक्रिया आवश्यक है। आप जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, उस यूनिवर्सिटी की सेनेट बोर्ड से पास कराना होगा। सुमैया जी को एक बहुत बड़ी भारी कठिन प्राय काम नहीं है, वो एक मोमेंट में इसको कर सकते हैं। उनके लिए आप प्रेरक हो सके हैं, यदि हो सकते हैं आप लोग प्रेरक, इसके लिए आप कराइए, सिलेबस बनाएंगे। आप
वो मादा तो रखा ही है सिलेबस बनाने के, नहीं रखा। आप लोगों का टीम में वो अर्हता रखा है कि नहीं? अभी जितना बताया, मानव चेतना, मूल्य शिक्षा, ये यहाँ से फीड हुई। इसकी रोशनी में तकनीकी शिक्षा समेत एक सिलेबस बना, संयुक्त सिलेबस बनाना है। वो प्रथम कक्षा से लेकर वो देश के अनुसंधान तक वो पूरा पढ़ना है, ऐसा तैयार करना है। ठीक है। अभी चेतना विकास मूल्य शिक्षा के संबंध में बेसिक थीसिस हम तैयार करके दे दिया है, और प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक पुस्तिकाएँ तैयार हैं। ठीक है। अब 7 वर्ष की पाठ्य पुस्तिकाओं को तैयार करना शेष। उसमें जो है ना, अपन विज्ञान संबंधी विधि में तकनीकी ठीक है, ज्ञान ठीक नहीं है। ज्ञान के मुद्दे में ये लिखा है, विज्ञान का दिग्गज ज्ञान पहला जो है ना मात्रा विज्ञान, दूसरा जो है ना सापेक्ष विज्ञान है ना, प्रोबेबिलिटी सिद्धांत। ठीक है। तीसरा जो है ना जेनेटिक इंजीनियरिंग। इन तीन मुद्दे पर अब अपन विकल्प लिख चुके हैं। वो कर्म दर्शन में ये पूरा बात आई है, उसको आप लोग शोध करके देख सकते हैं। इन तीनों के लिए सकारात्मक भाग, सकारात्मक ज्ञान ये पूरा है कि नहीं, वो ज्ञान के आधार पर अपन सिलेबस तैयार करेंगे तकनीकी शिक्षक का। ठीक है। वो आप लोगों को आगे चल करके शोध के लिए वस्तु रखा हुआ है। ठीक है। मैं समझता हूँ उसके लिए योग्य आप लोगों का संस्था है, संस्था का ख्याति भी ठीक है, और संस्था का जो एक मुख्य संचालक है उनका व्यक्तित्व भी ठीक है। उनके ऊपर बहुत बड़ी भारी अंगुली रखने योग्य कोई दाग दिखता नहीं है। ठीक है। आप लोग 5 में रहते हो, आप लोग ज़्यादा उसको समझ सकते हो। हमको ऐसा लगता है, दूर से जितने भी हम सुनते हैं उस व्यक्ति के बारे में, वो व्यक्ति सही है। उन्होंने ये बताया, उनसे हमारा बात हुई है। अंतिम समय तक हम पूरा समझने की पक्ष में हम विद्वान हो जाएंगे, हम नहीं कह सकते। हमारे पास साधन संपूर्ण है, ये बता के गए। यही बताया है ना, बस इतना ही बात। इसका गवाही आप ही। ठीक है। इसीलिए आप लोगों में ये प्रेरणा जागृत हो, मानव परंपरा के लिए आप लोग उपयोगी हो, आप लोग मानव चेतना के लिए एक समर्थ, सक्षम एक गवाही हो, ऐसा मैं शुभकामना करता हुआ हम यहाँ रुकता हूँ। अब इसके बाद ये रहेगी, आप लोगों से ये अपेक्षा करूँगा, आप लोगों को जो पूछना चाहेंगे वो सब स्वागत ही है। अभी हमारे पास 700 करोड़ आदमी के दिमाग से जो कुछ भी प्रश्न उभर सकती है, वो सबका हमारे पास उत्तर है। यदि समस्या है तो समाधान है, ये सिद्धांत है। प्रश्न जो है ना समस्या की है। ठीक है। ठीक है। और समस्या है तो समाधान है ही है। समाधान नहीं है तो समस्या भी नहीं है। ठीक है। इस ढंग से हम सभी समस्या का समाधान हमारे पास है, ऐसा मेरा मानना है। अभी तक के दिल्ली में IIT में और जगह में जितना प्रयोग किया अभी तक तो ऐसा ही है। वो अभी तक कोई प्रश्न के उत्तर हमारे पास नहीं है, यहाँ हम नहीं पहुँचे हैं। ठीक हो गए, बात पूरा हो गए। आगे धारणा और समाधि को उल्टा कर दिया, फिर संयम आया, तो वो थोड़ी बात समझ में नहीं आई। ध्यान समाधि, हाँ बाबा, संयम जो है धारणा ध्यान समाधि को उल्टा करके आपने किस तरह से किया, वो थोड़ा और स्पष्टीकरण चाहते हैं। हाँ, वो उसमें बहुत बढ़िया है, स्वागत ही है इसमें, और कुछ भी नहीं, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, मैंने पतंजलि योग सूत्र में 8 भूमिका बताया। ठीक है। पहले यम और नियम बताया, वो आचरण से संबंधित है। उसके बाद यम नियम, आसन प्राणायाम। ठीक है ना। आसन प्राणायाम भी शरीर स्वस्थता के लिए है। यम नियम आचरण से संबंधित है, और
तो आसन प्राणायाम शरीर स्वस्थता से संबंधित है ना। उसके बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार में ये बताया है मन में क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, मानसिक रूप में क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, उसको विभाजित किया है। उसमें ये इंगित कराया है हम एक विरक्ति विधि से, विरक्ति का मतलब है असंग्रह विधि से जीने की एक प्रेरणा मिलती है प्रत्याहार में। असंग्रह प्रवृत्ति से मुक्ति होना, संग्रह प्रवृत्ति से मुक्ति होना, इस बात को बहुत अच्छे ढंग से समझाया। इसका नाम है प्रत्याहार। उसके बाद धारणा। धारणा का मतलब है जिस क्षेत्र में, जिस वस्तु में जो हमारा मन निरोध हो सकती है, हमारा चित्तवृत्तियाँ निरोध हो सकती है, उसका नाम है धारणा। समझ लिए इतने बड़ा बोर्ड में हमारा चित्तवृत्ति निरोध हुआ। उसके बाद लिखते हैं इसका नाम है क्या हुआ, धारणा हुई। उसके बाद इसके आगे बताते हैं तत्र प्रत्येकतांतम ध्यानम। इसमें से निश्चित बिंदु में यदि हमारा चित्तवृत्तियाँ निरोध होते हैं उसको ध्यान नाम दिया। ठीक है। उसके तत्र अर्थ निर्भासम, जो बिंदु में जो अर्थ थी वो केवल अर्थ रहे, स्वरूप शून्यमिति समाधि है, कोई स्वरूप ना रहे, ऐसे स्थिति का नाम है समाधि। ऐसा पतंजलि योग सूत्र में स्पष्ट किया। इसको आप लोग पढ़ेंगे, ये पूरा वाक्य यथावत लिखा हुआ मिलेगा। ठीक। इसमें हमने जो अपने में स्वीकारा किसी क्षेत्र अथवा जब किसी आकार, जैसा कोई देवी देवता माता पिता या स्वयं की शरीर के आकार में चित्तवृत्ति निरोध हो गए, उसको हम धारणा कहेंगे। ठीक है ना। ठीक है ना। हमारा बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, है ना, या गुरुजी हो, देवता हो, कल्पनाएं क्यों ना हो, उस आकार में यदि चित्तवृत्ति यदि निरोध होता है उसको माना जाए। कोई अक्षर हो, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद यदि एक बिंदु में यदि चित्तवृत्तियाँ निरोध हुई का मतलब वो बताया। अब उसके बाद समाधि में तो चित्तवृत्ति निरोध होता ही है। चित्तवृत्ति निरोध होने का क्या मतलब बताया, हमारा आशा विचार इच्छाएं चुप होना। क्या बताया, जिसको मैंने अनुभव किया है। तो अभी पुस्तकों में ये नहीं है, किताब में ये नहीं लिखा है, आशा विचार इच्छाएं चुप होते हैं, ये बात नहीं लिखा है। तो मैं स्वयं देखा। ठीक है। तो आशा विचार इच्छाएं चुप हो जाते हैं, इसी को हम समाधि माना है। इसीलिए जितने भी हम कल्पना करते हैं, मनुष्य जितने भी सोच सकता है, उससे उस पार लिख दिया। मैंने समाधि जो है ना, समाधि ज्ञान जो कुछ भी मनुष्य की अप्रोच है, मनुष्य जो समझ सकता है उससे उस पार है, ऐसा लिख दिया, ऐसा कुछ लिख दिया। तो इसमें हमको कुछ मिला नहीं, हमको तो मिला नहीं, जिसको मिला वो बताएगा। ठीक है। जब नहीं मिला तब ये आए हमारे सम्मुख। जब समाधि का तो कोई गवाही हो नहीं सकती, अब किसी को बताएंगे, कई को विश्वास करेगा, कोई विश्वास करने का स्रोत है नहीं। तब ये जो संयम की बात है, संयम की बात आए तो ये धारणा ध्यान समाधि त्रयमेकत्रत्वात् संयमः, ये लिखा हुआ वाक्य, उसको हम उल्टा क्यों किया। जो उसमें विभूति पद में उस प्रकार के संयम की बहुत सारे चर्चा किया है। एक वाक्य लिखा है, कंठकोर परे संयमात् क्षुत् पिपासा निवृत्ति। कंठकोर पर उसका नाम है जो अपना गल ग्रंथि, जिसको थायराइड कहते हैं, स्वर ग्रंथि, इन दोनों के बीच में एक गड्ढा है। उस जगह में यदि हम संयम करेंगे, क्षुत् पिपासा निवृत्ति होती है, ये लिखा है। होता होगा। क्षुत् पिपासा निवृत्ति होने पर कौन संसार बच गया भाई, किस संसार को कल्याण हो गया, इसमें क्या होने वाला है, ऐसा हमारा चर्चा हुआ अंतःकरण में। उसका कोई उत्तर मिला नहीं, इसीलिए हम उन सबको छोड़ दिया। और उसमें दूसरा एक जगह में लिखा है, नाभिचक्रे संयमात् काय व्यूह ज्ञानम। तो नाभिचक्र में यदि हम ठीक से, नाभिचक्र का मतलब बॉर्डरी में यदि आदमी यदि संयम करेगा तो उनको जो है ना काय व्यूह ज्ञानम,
ये कि आदमी अनेक शरीर रूप में व्यक्त हो सकता है, ये लिखा है। ये किसको चाहिए? जो जानमारी, सेंधमारी, लूटमारी करना है उनको चाहिए। हमारा मन में ये आया, हमको काय के लिए चाहिए? हमारे लिए क्या प्रयोजन है? हमारा प्रयोजन दिखाना है। इसी प्रकार से पूरा विभूतिपाद का कोई भी प्रयोजन मेरे लिए ध्वनि नहीं दे पाया। सुन लिया आपने? मेरे लिए कोई प्रयोजन का ध्वनि दे नहीं पाया, इसीलिए हम उससे विरक्त हुए। ठीक है ना? किसी को देता होगा तो करते रहें, ठीक, ऐसी बात है। तो संयम में जो उल्टा किया, इसीलिए किया शायद है इससे भिन्न कोई फल निकल जाए। संयम तो होगा है, इस यकीन तो हम किया ही था, और यदि हम प्रोसीजर बदलते हैं शायद है फल बदल जाए। क्या फल होगा वो पता नहीं है, किंतु बदला हुआ कोई फल होगा तो वो हमारे लिए वरदान होगा, ऐसा हम सोच के कर दिया तो मानव का पुण्य से हम सफल हो गए। सफल होने पर ये सब बातें निकल के आए। मानव का अध्ययन हुआ, अस्तित्व का अध्ययन हुआ, ठीक है ना? पूरा अस्तित्व का अध्ययन होने से ये पता चला विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति का अध्ययन हुआ। ये इतने तो सूत्र है। मानव का अध्ययन, जीवन का अध्ययन, है ना? मानव का अध्ययन, जीवन का अध्ययन, अस्तित्व का अध्ययन, ये विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, 4 बिंदुओं में समाते हैं ये पूरे। इन 4 बिंदुओं का अध्ययन पूरा किया। पूरा करने के बाद उसको वांग्मय रूप देने लगे। कई को दिया, इसीलिए दिया ये जो बात बताया, धरती बीमार होना शुरू हुआ तो यह शायद है इसके लिए दवाई हो, इसीलिए इसको अर्पित करने की कोशिश की। एक दूसरा, ये जब उपलब्धि हुई, ये हमारे अकेले की नहीं है, मानव जाति का उपलब्धि है, ऐसा मैं सोचा। वो ठीक हुआ हो गलत हुआ हो विद्वान स्वयं निर्णय करेंगे, उनके पले में छोड़ दिया। ठीक है ना? कैसा छोड़ा? तो ये मानव का सर्व मानव का वस्तु है, इस बात को हम स्वीकारा। ये ठीक किया गलत किया आगे विद्वान बताएंगे, ठीक है? तो कई के लिए हम दूसरा दर्शन लिखना पड़ा। एक तो ये पता चला, तो विगत में जितने भी दर्शन लिखे हुए हैं वो ईश्वर केंद्रित, रहस्य मूलक ईश्वर केंद्रित तो चिंतन के आधार पर लिखा है। रहस्य से मुक्त कोई बात नहीं कर पाता है, रहस्य में ही सारे बात रह जाता। रहस्य मानव का प्रमाण नहीं हो सकते होता। रहस्य मानव का प्रमाण होगा? क्या कहना? रहस्य प्रमाण हो सकता है? ठीक है। इस आधार पर हम रहस्य के आधार पर हम कुछ लिखने के पक्ष में थे नहीं पहले भी, और संयोग से ये देखने की बात पता चला कि पूरा का पूरा अध्यवसायिक विधि से समझ में आने वाली भाग बचा हुआ है। वो क्या चीज़ है? अस्तित्व रूप में विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, ये अध्ययन के लिए आवश्यक है। मानव जागृति पूर्वक जीना है, दृष्टापद में जागृति पूर्वक जीना है। ये हमको समझ में आया। उसके लिए पूरा दर्शन उस अर्थ में लिखा हुआ है। दृष्टापद में अध्ययन पूर्वक दृष्टापद में होता है पूरा अस्तित्व के साथ, और प्रमाणित करने के क्रम में जागृति को प्रमाणित करता है। ये 2 बात लिखा है। ये यदि संसार को यदि उपयोगी है, मैं समझता हूँ आप उपयोग करेगा। जय। मन में ये विचार आया 3 दिन यहाँ कुछ सीखने के बाद और आपकी बात सुनने के बाद, कि ज्ञान अवस्था में आने के बाद मनुष्य ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर लिया है, जैसा आपने भी बताया। तो वो जो 3 अवस्थाएं हैं स्वाभाविक रूप से चल रही हैं, और नुकसान इतना ज़्यादा हो चुका है, और हम जिस गति से इसे सीख रहे हैं और 700 करोड़ लोगों तक पहुंचाना है, क्या हम पहुंचा पाएंगे, या उसके पहले ही ये जो ज्ञान अवस्था है वो दुनिया को नष्ट कर देगी? आप क्या सोचते हैं? क्या कर बाबा, आपका प्रश्न है कि ज्ञानावस्था ने, मानव ने सबसे अधिक प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है,
इस दवाई का लोगों 700 करोड़ लोगों तक पहुंचने की स्पीड इतनी कम है, हो सकता है इसके पहुंचने के पहले ही ये मानव कुल विनाश हो जाए, ये तो कल्पना आता ही है, इसमें दो राय नहीं। आपने कोई अनुचित कह रहा है ऐसा नहीं है, ये स्वागत ही बात है। तो उसके लिए तो अब भाषा हम प्रयोग किया, प्रयोग ही कर सकते हैं। अभी अपने पास जो बचा हुआ समय है उसमें हम अपराध मुक्त हो सकते हैं। शायद दूसरे प्लानिट में जाना है, वहाँ जाते तक में यदि हम अपराध मुक्त होते हैं, वहाँ तो कम से कम अपराध नहीं करेंगे। एक ये भाग ठीक है ना। दूसरा, यदि धरती में शक्तियाँ शेष रहती है, सुधरने के लिए अवसर बन जाती है। ये दोनों संभावनाओं को देख करके हम इसको व्यक्त किए हैं। ठीक है। एक प्रश्न बाबा, आपको समाधि संयम के बाद जो पूरी प्रकृति का अध्ययन संभव हुआ, उस अध्ययन की प्रक्रिया और उसका स्वरूप कैसा रहा? वो अध्ययन कैसा हुआ? अध्ययन जैसा आप अध्ययन करते हैं, आप कागज में अध्ययन करते हैं, हम प्रकृति में अध्ययन किया जैसा। इधर तो बाबा बोर्ड चलता है, आपके सामने भी कोई वही तो कह रहे हैं। अभी जैसा एक परमाणु देखने के लिए आपको एक लैबोरेटरी चाहिए, एक अणु देखने के लिए एक लैबोरेटरी चाहिए, एक रसों में एक बैक्टीरिया को देखने के लिए एक लैबोरेटरी चाहिए ना? नहीं चाहिए। इसके बिना आप देख नहीं पाते हैं। तो हम प्रकृति में देखा है, तो आँख से तो इसमें क्या तकलीफ है? तो अब आँख से तो दिखता नहीं, आप कैसा देखे? वही तो बताए, संयम का यही गरिमा है। जो जितने अपन सूक्ष्मतम रूप को हम जितने भी विद्युत विधि से, रेडिएशन विधि से जितने सूक्ष्म रूप में देखने के लिए उपकरणों को प्राप्त किए हैं, वो सब मनुष्य का ताकत के आंशिक भाग है। क्या सुना? हाँ, ये जितने भी लैबोरेटरी क्रिएट किए हैं, मनुष्य का मनाकार में ही क्रिएट हुआ है। ये बात पर आप यकीन कर ही सकते हो। ठीक है ना? मनुष्य जो है ना, अपना संपूर्ण एफिशिएंसी को कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर पाता है। ये समझ में आता है? जितना ताकत मनुष्य के पास है, सभी को कहीं भी इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता, आंशिक भाग ही इन्वेस्ट होता है। क्योंकि स्वयं में होना बना ही रहता है, रहना बना ही रहता है। होते हुए रहते हुए इन्वेस्टमेंट है मानव के साथ, होते हुए रहते हुए, किसी विधि सहित रहते हुए, अस्तित्व सहज विधि से होते हुए आदमी रहता है। ठीक है ना? इन दोनों के योग फल में हम जितने भी इन्वेस्ट करते हैं, क्या चीज़ को? मानसिकता को। उसमें उसी में कुल मिलाकर के एक डिज़ाइन बनता है। उसी का नाम है लैबोरेटरी, उसी का नाम है रेडियो, उसी का नाम है आपका दूरसंचार। ये सब माना जा सकता है, क्या तकलीफ है? ठीक है। इसमें मनुष्य संपूर्ण इन्वेस्ट नहीं हुआ है, बचा ही है। ठीक है। वो कैसा बचा रहता है और कुछ व्यक्त करना शेष है। मनुष्य की संपूर्णता समाधान में ही व्यक्त होता है, बाकी सब जगह में आवश्यकता ही व्यक्त होता है। मनुष्य का संपूर्णता समाधान रूप में ही आती है, न्याय रूप में ही आता है। समाधान ही सुख है, मानव धर्म ही सुख है, ऐसा बात बना है। ये आपको ये बात हो चुकी है, चर्चा में आ चुकी है। इस ढंग से मानव जाति का संपूर्णता समाधान रूप में ही संपूर्णता व्यक्त होता है एक दूसरे के साथ। अभी अधूरा हैं हम, किसमें? ये तकनीकी विधि से हम थोड़ा सा परिचय दे पाए। इन्होंने मोटर बनाया, इन्होंने रेडियो बनाया, इन्होंने वो सिम बनाया, वो बनाया, ये बनाया, ये सब तो अब हम कह ही रहे हैं। ठीक है ना? ये केमिकल वो बनाया, वो केमिकल ये बनाया, ये जहर ये बनाया, ये सब हमने। उसके बाद युद्ध के लिए जैविक युद्ध के लिए कुछ किया, रासायनिक युद्ध के लिए कुछ किया, उसके बाद जो है ना विकिरणीय युद्ध के लिए कुछ किया। ये सब तो अपन सुन चुके हैं। ठीक है। कोई बाकी बचा? माने नाश होने की भाग में सब कुछ हम सुन चुके हैं, बचने की भाग में हम अभी सुन नहीं पा रहे हैं।
उस घंटी को अपन बांध करके चलाया जाएगा, हलाया जाए घंटी को, क्या तकलीफ है? नाश होने की घंटी तो बजी रही है, इसमें कोई शंका है क्या? नहीं है ना। तो अब बचने का भी घंटी बजाया जाए, ठीक है? ऐसा मैं ही कह रहा, कोई गलत? इसको बदलना है? नहीं बदलना है ना, बदलना। हाँ, आगे बाबा एक प्रश्न आया है हाँ कि किसी घटनावश कोई अपनी आंख खो देता है, हाँ जन्म से ही हाँ, आँख खो लेता है, आंख देखने की क्षमता नहीं रहती है, हाँ ठीक है, आंख खो जाती है, हाँ। तो इस तरह के दुर्भाग्य को या इस तरह की घटनाओं को आप कैसा देखते हैं? देखते हैं इसमें जो है ना कोई खास बात नहीं है। देखिए, शरीर की यात्रा शुरुआत होता है गर्भावस्था से, गर्भाशय में शुरू होता है। गर्भाशय में जब कभी शरीर रचना होने के लिए शुरुआत होती है, उसका पूरा कार्यक्रम को बायोलॉजी विधि से अध्ययन किए हैं। वो खास थोड़ा सा भाग को छोड़ करके बाकी बात ठीक है। जैसा मेधस रचना का कार्य, उसको संचालित करने वाले वस्तु के बारे में जीवन अभाव है भौतिक विचार के अनुसार, तो उतने छोड़ करके बाकी भाग ठीक है। वह बाकी भाग ठीक होने के आधार पर शरीर रचना जब होती है, उस समय में जो कोई भी व्यवधान होती है, उसमें आँख भी जा सकता है, कान भी जा सकता है, कुछ भी जा सकता है, पैर भी जा सकता है, हाथ भी जा सकता है। अभी आपने बहुत अच्छी ढंग से आकलित कर सकते हो, आप लोगों का एक बहुत अच्छे काम है आकलन करना। बम्बई में जिनके यहाँ पैसा सड़ता रहता है, उनके बच्चे लूले, लंगड़े, अंधे निकलते हैं। क्यों निकलते हैं भाई? पूछा। उसका उत्तर में हमने ये पाया है, मेरे अध्ययन ये है कि गर्भावस्था में लोगों ने गर्भ विरोधी दवाइयों को खाते हैं। गर्भ विरोधी दवाइयाँ खाने से गर्भादि समाप्त नहीं होता है, उसको गर्भ को क्षतिग्रस्त करता है। इतनी ही बात है, इसमें कौन सी बड़ी भारी बात है आप सोचते? सुन लिया आपने? ये सही है कि गलत है? क्या कहना? ये आप लोग जो है ना, ये किसी आयु में हो, आप लोग इसका गवाही दे सकते हो। ये गलत है मैंने जो देखा है।